Hi guys, what's up? Today I'm back with another live stream. आज हम लोग मार्क डुप्लेस की बात करने वाले हैं. आई होप यू कैन सी मी, यू कैन हेयर मी एंड हम आज मार्क डुप्लेस की बात करेंगे. मार्क डुप्लेस ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की है एंड एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो, एज अ क्रिएटर ऑल्सो, जो इनकी फ़िलासफ़ी है पूरी इंडी फिल्म मेकिंग की, दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली रियली एडमायर. और इनकी मैंने एक बुक भी पढ़ी है जिसका नाम है लाइक ब्रदर्स की. इनकी एक किताब है विच आई रियली रियली लाइक. तो ये मतलब इसके बारे में भी मैं अभी बात करूँगा. एंड हाँ, तो पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ. लाइक इट्स कॉल्ड मेक मूवीज़ नॉट मीटिंग्स. मार्क डुप्लेस का ये मानना है कि अगर आपको फिल्म्स बनानी है ना तो आपको मीटिंग्स नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत होता है. लेट हिम एक्सप्लेन बाय हिमसेल्फ. तो हम ये वीडियो देखते हैं. There's so much time wasted, money wasted, people wasted in the film business, and I think it scares most people away. Can you talk a little bit about, the way people think the film business is versus how you figured out your own system? Yeah, I mean, I totally had this weird, year after I made the puffy chair when I moved to Los Angeles. My brother and I went around town doing what's called general meetings. And every meeting was everyone telling us, we want to make your next movie. We want you to do this for us. We want you to do this. It was so exciting, so much ego blowing. And then we kind of looked up and we're like, we haven't made anything. So we called our agents and we were like, well, that's it. We're never taking any more general meetings again. And they were like, wait, no. General meetings, that's how movies get made. And we're like, nope. We have a new motto. Make movies, not meetings. We're done with meetings. And it taught us a really, really great lesson, which is the development process of films is 99% of the time that people spend in this industry. Talking about making them, trying to attach talent so they can get their $5 million of foreign financing to do this thing. And it is a fucking nightmare. Yeah. And there are people, and this is a totally valid criticism, who have criticized my approach to making movies and saying man, you gave it away. The Puffy Chair was such a great script. You could have cast huge movie stars in that movie. You could have made it for $20 million at this place. And my answer is, अब जो ये बोलेंगे, it's like one of my all-time favorite lines of Mark Duplass. His answer. Maybe, but why wait on maybe when I have a definite in front of me at all times? I never thought my career was going to be this. I thought you make a couple of independent films, or maybe just one. The answer being, why wait on a maybe when I have a definite in front of me at all times? And then you get promoted into Hollywood. Right. And that independent film was just a stepping stone to get there. And so I actually kind of did that. I made The Puffy Chair, and then I went and made Cyrus for Fox Searchlight, and I made Jeff Lives at Home for Paramount. And I did get to make those movies exactly how I wanted to, but I almost died doing it. So I just kind of got there and I was like, I don't like this. I want to be in the smaller space at the bottom of the fish tank. I don't know, I had this weird thing happen to me when I would go to my video store in the mid-90s when I was in my teens, and I was finding all these old, early 70s Hollywood movies that I'd never heard of. And I was like, what are these things, And they didn't, get a lot of theatrical release, but they were around. They were on video to be seen by me 30 years later. And that's, the biggest goal I have is, I don't need to go out on 3,000 screens with Blue Jay to be feeling good about it. What I need is to make the movie exactly the way I want to make it, and maybe 20 years down the line, some kid's gonna stumble across it and be like, what is this thing? Yeah. That's all I need. So ये जो बोल रहे हैं, he's talking about Blue Jay in specific, Blue Jay Netflix पे available हुई गई थी. And I really like this philosophy that you don't care if your movie gets released in a theater or not. You are just concerned about making the movie exactly the way you want to make it, and that is something I really really admire about Mark Duplass. And उनसे ये मैंने चीज़ सीखी है. इनकी जो एक मार्क डुप्लेस की एक फिलॉसफी है विच इज़ कॉल्ड कैवलरी इज़ नॉट कमिंग. ये एक स्पीच है इनकी विच इज़ लाइफ चेंजिंग. मतलब मैं आज मार्क डुप्लेस के बारे में बात भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका टोटली इट कैन वेरी वेल चेंज हाउ यू ऑपरेट एज अ क्रिएटर एंड नॉट जस्ट एज अ फिल्म मेकर. क्योंकि ही टॉक्स अबाउट सेल्फ रिलायंस जस्ट लाइक वर्नर हर्जॉग. जिन लोगों ने ब्लू जे नहीं देखी है, मैं क्विकली ब्लू जे के बारे में एक लाइन
यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. Blue Jays a film he has written, and it's available on Netflix, and it came out in 2016, and it stars Sarah Paulson and Mark Duplass. तो इसमें डायरेक्टर इन्हीं की गैंग से कोई थे, बट ही एक्टेड एंड he acted in it, and he has written the script. ब्लू जे का पोस्टर बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है. आप मार्क डुप्लेस यूट्यूब पे टाइप करोगे, दैट इज़ द फर्स्ट वीडियो, द सेकेंड वीडियो दैट कम्स. एंड ये एक घंटे का वीडियो है, बट इसमें मार्क डुप्लेस हैज स्पोकन फॉर लाइक 40 मिनट्स. उसके बाद उन्होंने 20 मिनट Q&A किया है. यू शुड डेफिनेटली वॉच इट. और इसका बेसिकली इसका जो तात्पर्य है यहाँ पे ना, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ. लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. लेट मी ऑल्सो सी अगर कोई कमेंट्स आए हैं क्या. हे फर्स्ट टाइम गॉट अ चांस टू जॉइन योर स्ट्रीम. हे प्रत्युष प्रकाश, थैंक यू सो मच. वेयर हैव यू वॉच्ड पफी चेयर? ब्रो आई हैवंट वॉच्ड पफी चेयर येट. मेरे को देखनी है. आई हैवंट वॉच्ड इट. इज ही अ राइटर? मार्क डुप्लेस इज अ राइटर एंड अ फिल्म मेकर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. So yeah, now talking about his improvised tips for success, एक एक करके डिस्कस करते हैं. स्ट्रीम सही चल रहा है? हाँ, तो मार्क डुप्लेस का जो पहला फंडा है वो है कि a $3 शॉर्ट फिल्म. तो ही बेसिकली सेज कि आपको जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उससे पहले जाके अपनी एक पहली शॉर्ट फिल्म जाके बनाओ. तो जब आप अपनी $3 शॉर्ट फिल्म बना लोगे, फिर उसको फेस्टिवल्स में भेजो, लाइक सेंड इट टू एवरी फेस्टिवल दैट यू कैन पॉसिबली कैन. देन अपनी एक फीचर फिल्म बनाओ इन लेस देन लाइक $1,000, लाइक 60-70 हज़ार रुपये में अपनी एक फीचर फिल्म बनाओ. देन शो इट टू एवरी मूवी स्टार दैट यू कैन, लाइक, और मतलब मूवी स्टार से मतलब है Tier 1, Tier 2, Tier 3, लाइक शो इट टू एवरी वन. और then make another cheap movie, then like embrace VOD. VOD means video on demand. तो आप Vimeo जैसी वेबसाइट्स देखोगे तो वहाँ पे ये बहुत होता है. then टेलीविजन में आओ. ये एक एक बेसिकली इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि फिल्म मेकर कैसे बनते हैं, और इन्होंने ये अपनी बुक में भी बताया हुआ है. लाइक देयर इज दिस कंप्लीट चैप्टर इन इट. इसमें मैंने बहुत कुछ अंडरलाइन कर रखा है. द कैवलरी इज नॉट कमिंग. आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस. तो कैवलरी इज़ नॉट कमिंग से इनका मतलब है कि आपको कोई बचाने नहीं आ रहा है. कि अगर आपको लग रहा है कि आपको फिल्म मेकर बनना है या आपको क्रिएटर बनना है, तो आपको कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस के लिए लिखोगे तो आपकी स्क्रिप्ट ले लेंगे, देन दे विल हेल्प यू. बट ही सेज कि ऐसा कुछ होता नहीं है. एंड कैवलरी से ही इज़ रेफरिंग टू एवरी बिग प्रोडक्शन हाउस, बी इट बॉलीवुड और हॉलीवुड और टॉलीवुड, आप जहाँ पे भी रहते हो. सो जिसकी पहली लाइन ही है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है कि हाउ डू यू मेक इट इन दिस फकिंग बिजनेस, ब्रूटल फकिंग बिजनेस. तो इन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दी है, जो मतलब प्रिटी मच इनकी जो स्पीच है इसमें भी ये एक एक वर्ड है. स्टेप 1 मेक अ $5 शॉर्ट फिल्म. स्टेप 2 फिल्म फेस्टिवल्स. बेसिकली जब आप ये सारी एक एक करके चीज़ें करोगे ना, तो कैवलरी आने लगेगी. इनका कहने का मतलब है लोग आपको जानने लगेंगे कि हाँ ये कुछ कर रहा है. ही हैज़ मेड सो मेनी शॉर्ट फिल्म्स, क्रिटिकली अक्लेम शॉर्ट फिल्म्स. ही हैज़ मेड अ $60,000 मूवी. सो पीपल विल स्टार्ट नोइंग यू. उसके बाद देन ही लाइक सेंड इट टू फिल्म फेस्टिवल्स. फिर क्या होगा कि आप जब ये सब कर लोगे, देन द स्टेप 5 इज टेक अ स्मॉल स्टेप बैक. तो आप जब लोगे, आप पीछे एक स्टेप लोगे, तो आप देखोगे आपने इतना कुछ कर लिया है. आपने शॉर्ट फिल्म्स बना लिया, आपने टीवी शो बना लिए, तो अब तो आपको कोई आके एकदम से कोई बहुत करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट दे देगा. एंड लेकिन वो बोल रहा है ऐसा नहीं होता. दिस इज़ व्हाट मार्क डुप्लेस कीप सेइंग कि आपको लग रहा होगा कि ये होगा, बट नहीं होगा. आपको लग रहा होगा कि अब तो मैंने ये बना लिया, अब आपको कोई बचाने आ जाएगा. अगेन ऐसा नहीं होगा. एंड दिस इज़ व्हाट ही कीप्स टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइम. इसका जो लास्ट चैप्टर है, अ बिग डिसीजन, आई विल रीड इट आउट टू यू. आई होप द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर. सो दिस इज लाइक समथिंग आई रियली वांट टू रीड आउट टू यू. Here's the truth. Your agent really does have some genuine looking opportunities to create something within Hollywood system now. A movie idea that studio wants you to write and direct, or another TV network that would likely buy a pitch from you and develop a new idea. Basically अब आपने जब अगर 5-6 शॉर्ट फिल्म्स बना ली critically acclaimed और 2 फीचर फिल्म्स बना ली, भले ज़ीरो बजट या लाइक लेस देन $1,000 में, तो ये कह रहा है कि अब आपके पास ऑफर्स आएंगे. बट द ब्रूटल रियलिटी इज, even though it feels like that the golden cavalry is right there on your doorstep, it really isn't.
the cavalry is still not coming. Cavalry again means every person whom you think is coming to save your ass, who is coming to give you that, like Dharma ki film or a Yashraj ki film or a Nolan ki film. The cavalry is still not coming. Because even if you get the rewrite job, they likely won't make it your way. They likely won't make the movie your way. And even if you sell another TV pitch, you could end up in a turnaround again. This is a sobering acknowledgement, a true bummer. That dream you have been working towards of becoming a successful filmmaker who gets studio paycheck is not what you thought it would be. So you take the stock of your life and try to figure out what went wrong. अब आपको लगेगा कि यार मैंने इतना कुछ कर लिया लाइफ में, अभी भी मेरे को नहीं मिला, मतलब मैंने ये सारी शॉर्ट फिल्म्स बना ली, मैंने फीचर फिल्म्स बना ली, तो अभी भी मेरे को ये लाइक व्हाई इज नॉट द कैवलरी कमिंग. You have made 2 feature films, one with one which is well reviewed and one with Randy Hercules. Randy Hercules means कोई भी थोड़ा सा famous. That did quite well financially and critically. And you have also run a TV show for a year and produced smaller indie films that did well. That did well for everyone. You are not rich, but you are making a living, and you are proud of your work. And you can't help but think, how is it possible that after all these years of hard work, pushing up the boulder, up the mountain, the cavalry is still not coming? How is it still possible that I'm still funding my own films from ground up after all this time? And then it hits you. It's like आप सोच रहे हो यार इतना कुछ कर लिया, अभी भी cavalry क्यों नहीं आ रही? And then it hits you. Who gives a fuck about the cavalry? You don't need them. Because now you are the cavalry. अब वो फिर ऐसे इसमें आप स्पीच भी देखोगे ना, स्पीच में भी लाइक ही डज दिस थिंग, आई एम गोइंग टू टोनी रॉबिन्स यू फॉर अ सेकेंड, यू आर द फकिंग कैवलरी. एंड ये इसमें ऐसे अलग से इन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, यू आर द कैवलरी. सो लाइक द रियलाइजेशन व्हेन यू रियलाइज कि आपने मतलब ये कुछ किया है. सो थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड. You are your own infrastructure now. You can self-fund all your micro-budgeted movies and TV shows you want to make at this point, and you can have full creative control of what you want them to be and how you want them to be. And while it is a limit to only make small stuff, you can go to bed at night knowing everything you have made and will make is something that you will be proud of. And this is reflective of your spirit, and you can show it to your kids one day without explaining that you became a sellout. This realization is what making it means to us. Making it means making it to the industry कि हाँ इस बंदे ने अपना मतलब बना लिया है कुछ. Being independent, being in independent film and TV is no longer a means to an end to get into Hollywood. It is a way of making things that we believe in and choose to stay with. So dear pupils, this is the last paragraph. We humbly say to you, if you can accept that the cavalry probably isn't coming, but that you can be your own cavalry, this will be your best chance at maintaining long-term success in your career. Perhaps more important, and something we don't talk enough about in this business, this will give you a chance to happiness. मतलब मेरे को तो ऐसे रोना आ जाता है when I look at that last line ना, कि आप ये जब ऐसा लाइफस्टाइल अपना लोगे ना, when you are making your own things, you are self-funding it, और अब आपके पास आप एक खुद में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, this gives you a chance about something that people don't talk about enough. It makes you happy. तो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक. इट्स कॉल्ड लाइक ब्रदर्स. इसका एक पैराग्राफ मार्क डुप्लेस ने लिखा है, फिर एक पैराग्राफ जे डुप्लेस ने लिखा है, एंड इन्होंने पूरा अपना लाइक वर्किंग टुगेदर बताया है कि कैसे उन्होंने मतलब क्रिएटिवली और फाइनेंशियली सक्सेस अटेन की थी. सो दिस इज़ वन दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, एंड आई होप लाइक एवरीथिंग इज गोइंग नाइस. हाय सजेस्ट मी, मैं थोड़े कमेंट्स पढ़ लेता हूँ एक बार. सजेस्ट अ सस्पेंस मूवी. हेलो वैभव, माई रियल टाइम मेट्स. इसका क्या मतलब हुआ? आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट बट आई कैन नॉट. ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू हैव अ रिमाइंडर सेट इन योर लाइव स्ट्रीम. हाँ यार, अभी तो मैं अपने सिस्टम पे लाइव स्ट्रीम्स कर रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है. 2012 का मेरा लैपटॉप है, तो इट्स अ बिग डील दैट लाइक दीज आर ऑल वर्किंग. एंड ये बहुत अच्छा. लेकिन रवि शास्त्री ने हमें पॉइंट दिया है. रवि शास्त्री इज वॉचिंग अस. नाइस. व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लो भाई. व्हाट्सएप पे कुछ नहीं है यार, ऐसे ही खुले हुए हैं. तो हाँ, कमिंग बैक टू अब लोगों को एक बहुत कूल चीज़ बताता हूँ, उसके बाद लाइक आई विल टेक अ लीव.
My brother actually got my elder brother got Mark Duplass to send me a personalized message some time back. There is a website Cameo where you can pay like people money, donation based होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी creators हैं they on a donation basis, अगर आप उनको एक specific amount दोगे तो they'll make a personalized message for you. तो Mark Duplass ने एक personalized message भेजा था मेरे को कुछ महीने पहले, और मैं पागल हो गया था कि उसमें वैसे बोल रहे hey Vaibhav, and I'm like what the fuck. तो आप लोगों को मैं मैसेज अभी अभी मैंने डाउनलोड किया, अभी तक तो मैं वेबसाइट पे देखता था. लाइक आई विल लाइक जस्ट प्ले इट फॉर यू गाइस. सो दिस इज अ पर्सनलाइज्ड मैसेज बाय मार्क डुप्लेस फॉर मी. Hello there, Vaibhav. I hope I'm saying your name correctly. This is a message for you from me, Mark Duplass. I hear that you're an aspiring filmmaker, and that is awesome. And as I'm sure you know by now, an incredibly challenging road. So Gaurav has asked me to give you some tidbits of advice. There are a couple of things I highly recommend. The first is go onto YouTube and search Mark Duplass 2015 South by Southwest keynote. I take an hour to painstakingly walk through a process of coming from nowhere, no funds, no connections, and step by step building a career for yourself where you don't wait for anyone's permission or your help, and that will be a lot more effective than anything I can do right here. But the core of all of this is the essential belief that you uniquely have a story to tell that only you are able to tell with your experience, your sense of humor, your particular taste level, and that is exciting, and you have to hang on to that, and you have to hone that, and it sometimes takes a long time to figure out what you are good at making. So what I recommend is every weekend, if you can, gather some friends and shoot a short film that's free to make on your... ये तो गोल्डन रूल है, अगर आपको फिल्म मेकिंग में कोई भी इंटरेस्ट है तो हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ बनाओ. मैंने ये कॉलेज में 2 साल तक किया, मैंने बॉम्बे आने के टाइम बाद भी ये 1 साल तक किया था, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज नॉट टू डू इट. मेरे को थोड़ी भूख लग रही है, मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, बिकॉज इट्स दिस इज़ हाउ यू विल होन योर स्किल्स एंड दिस इज़ हाउ यू विल बिकम ग्रेट. एंड आज के डेट में इतने फ़ोन है तो आप ये कहीं भी कर सकते हो. और by the way, the guys who are just joining us, this is a personalized message Mark Duplass sent me some time back because I'm cool. So आप देखो, continue. Or a smartphone, you know, something that's 5 minutes or under, ideally just one scene between a couple of actors, and keep honing in, keep rewriting, keep reshooting. It'll probably be terrible at first. My first 10 years of filmmaking, I didn't make anything good, and then eventually you'll probably make something that has a spark to it, and it will probably be something pretty personal, something that you have very intimate conversations with people that you know and love and trust about, something that you would think of and it would make you cringe or giggle, and you would say, God, I could never make a movie about that. That's what you should be making your movies about, particularly your early movies. And just keep building and building and building. This is a hard business, but it's incredibly rewarding for those people who are kind along the way, who are collaborative, and who never give up, and who are honest with themselves. You know, if you make something that's not good, don't try to send it to film festivals. Give it up, put it away, and make something. Ask yourself. You'll know it's good. So if you're sitting around thinking, Audio clear? God, is my movie I made, is it any good? If you have to ask, it probably isn't. And just keep going until you make something inspired and great. Good luck to you, my friend. Cheers. So ये मेरे को मार्क डुप्लेस ने मैसेज भेजा था, एंड लाइक समथिंग लाइक आई रियली रियली चेरिश. और आई एम लाइक आई वाज डिलाइटेड दैट आई गॉट दिस. लाइक मैं थोड़े और कमेंट्स पढ़ लेता हूँ अभी क्या है. इज योर ब्रदर द CFO ऑफ अन अकेडमी? माई ब्रदर इज नॉट द CFO ऑफ अन अकेडमी, माई ब्रदर इज द CEO ऑफ अन अकेडमी. Sir, where to go the first day in Mumbai for directing? I am an outsider. Aman Isar. आप नए हो तो यार वही आप ये स्पीच देखो. मेरे को, मैं जिस भी फिल्म मेकर के साथ काम करना चाहता था, उन्होंने मेरे को बोला था आप ये स्पीच देखो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. मार्क डुप्लेस साउथ बाय वेस्ट की ये लाइव 2015 की स्पीच है, आपको ये देखनी चाहिए.
and this will change everything about how you operate. Can you suggest can you do an episode on Gus Van Sant? Yeah, to be very honest ना, I'm not a big fan of Gus Van Sant. मेरे को लगता नहीं उन्होंने कुछ अच्छा बनाया apart from वो कौन सी मूवी है मैट डेमन वाली, गुड विल हंटिंग. एलिफेंट भी सही है, बट लाइक आई एम नॉट लाइक अ वेरी बिग फैन ऑफ गस वैन Sant. और प्लीज़ शेयर इंडी वायर आर्टिकल लिंक. ये लिंक मैं डाल सकता हूँ क्या चैट में? डिस्क्रिप्शन में डाल देना. नहीं सी समथिंग में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा. मैंने डाला है, एक बार आप लोग देखो. ए इट्स सो फास्ट. थोड़ा मैं भी ऐसे हो जा रहा हूँ. बेस्ट मूवी ऑफ रूसो ब्रदर्स, बेस्ट अनुराग कश्यप मूवी, ये तो मैं बाकी एपिसोड्स में भी करता ही हूँ गाइस. तो सजेस्ट मी अ सस्पेंस मूवी. वॉच नॉक्टर्नल एनिमल्स. गाइस मैंने नॉक्टर्नल एनिमल्स चलचित्र पे रेकमेंड की हुई है. बाय द वे अब हम लोग थंबनेल्स वगैरह पे भी काम कर रहे हैं, तो अब आपको पता चल जाया करेगा किस एपिसोड में क्या थीम है. एंड मैसेज फ्रॉम मार्क हिमसेल्फ, दैट्स डोप बडी. यस, मैं भी काफ़ी खुश हुआ था जब मेरे को ये मैसेज मिला था. एंड लाइक दैट वाज अ वेरी बिग हाई पॉइंट. मार्क डुप्लेस का एक और इंटरव्यू है, जब आप मार्क डुप्लेस यूट्यूब पे टाइप करते हो ना, तो इनका एक नेटफ्लिक्स के साथ वो आया था. एक सेकेंड रुको. नेटफ्लिक्स 5 Duplass like on creative habits. I don't care what you think you ये are. वीडियो भी देखना चाहिए. मैं कॉपीराइट इश्यूज की वजह से ये वीडियो नहीं चला रहा, बट लाइक इसमें इन्होंने एक बहुत सही पॉइंट बोला, और हम सब अभी क्वारंटीन में है, तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस. ये बोलते हैं कि इवन इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम ना, ड्रेस अप एवरी डे एज इफ यू आर वर्किंग फॉर वर्क. तो जब भी आप सुबह उठो, और अगर आपको साइड में टेबल पे ही बैठना हो ना, तब भी आप ऐसे ना धो के कपड़े चेंज करके बैठो एज इफ दैट इज़ योर ऑफिस. तो इन्होंने 5 ऐसी हैबिट्स बताई हैं. ओ, और बाय द वे पैडल्टन इज़ द मूवी. ये अभी तक मैंने रिकमेंड नहीं किया, बट पैडल्टन इनकी एक फिल्म है रे रोमेरो के साथ. ये मैं करूँगा किसी दिन रिकमेंड. यू शुड डेफिनेटली वॉच इट. इट्स सच अ ग्रेट फिल्म. इट्स अबाउट अ गाय हु इज़ डाइंग, और 2 जनों का मतलब उसको एक डिजीज़ होती है और वो मर रहा होता है, और 2 लोग कैसे अपना साथ में, 2 ओल्डीज अपना टाइम कैसे साथ में स्पेंड कर रहे हैं. रे रोमेरो और मार्क डुप्लेस है इसमें. इट्स अ ग्रेट फिल्म, और वन ऑफ द बेस्ट इंडी फिल्म्स टू हैव कम आउट इन रिसेंट ईयर्स. इसको मैं रिकमेंड भी करूँगा. वाई सम शो सो आइकॉनिक लाइक फ्रेंड्स, इज दैट एनी गोल्डन रूल? आई वो टेम्पलेट्स पे बने थे. हाय आयुष मित्तल इज ऑन द चैट. हाय मंजाल. आयुष मित्तल गाइस मेरा कॉलेज का फ्रेंड है. हमने सिविल इंजीनियरिंग साथ में किया, तो मैं बड़ा खुश हो गया उसको देख के. मैं उसको मैसेज कर देता हूँ. हाय आयुष. वेयर टू गो इन मुंबई फॉर आउटसाइडर्स हु वांट टू बी अ डायरेक्टर? पृथ्वी थिएटर. पृथ्वी जाओ, बट पृथ्वी पुराना हो गया, एक्टर्स के लिए ज़्यादा है. घर पे बैठ के सीखो. विच स्टोरी इज टू रेपिटेटिव की, अच्छा कि जो 2 दोस्त मर रहे हैं. नहीं यार, बट सौरभ की अगर आप मूवी देखोगे, इट्स क्वाइट डन इन एन एक्स्ट्रॉर्डनरी वे. ये ऐसे गेम खेलने जाते हैं वगैरह, और जिस तरीके से ब्रोमांस दिखाया है ना इसमें मूवी में, इट्स क्वाइट समथिंग. ये आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए मूवी. और डू यू वॉच द ऑफिस? या मैन, मेरे को ऑफिस बहुत ज़्यादा पसंद है. अगर आप लोग ऑफिस के फ़ैन हो तो राहुल देसाई ने अभी एक आर्टिकल आएगा वापस. आया आ गया. आ गया ना? नहीं अब तक तो नहीं. हाँ, तो सॉरी गाइज, वो लिंक टूट गया था. एंड इंडियन मूवीज़ की इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ. एंड लेट्स गेट बैक टू लाइक मार्क डुप्लेस. तो आप ये देखिए ना, आई थिंक मेरी स्ट्रीमिंग बीच में अपने आप बंद हो गई, तो मेरा लैपटॉप सिग्नल्स दे रहा है कि ये हैंडल नहीं कर सकता ये सब. सो आज का यही था. प्लीज़ टेल अस व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर बिगनर्स इन मुंबई.
बताया जो यार अमन निसार, आप सेम क्वेश्चन बारे में पूछ रहे हो, आप ये वीडियोस देखो ना, आपको क्यों किसी से मिलना है, लाइक मेक योर ओन स्टफ, आप लाइक खुद चीज़ें बनाओ, एंड दिस इज़ द वे इन 21st सेंचुरी। और अभी तो आप कहाँ मिलोगे, कोरोना वायरस है इतना बाहर, घर में बैठो, घर के अंदर मूवीज़ बनाओ। आज दृश्यम फिल्म्स ने कॉम्पिटिशन चालू किया, आप दृश्यम फिल्म्स का पेज जाके देखो, टू लाइक यू कैन मेक योर ओन मूवी एंड सबमिट इट टू देम, एंड दे विल लाइक लेट यू नो, लाइक आपको वो एक पूरा शॉर्ट फिल्म कंपटीशन कर रहे हैं। और प्लीज़ डू एन एपिसोड ऑन वॉन त्रेयर। करूँगा यार, मेरे यहाँ पे साइड में पोस्टर भी लगा हुआ है वॉन त्रेयर का एक, तो अब चल रहा है ना। हाँ, सो अब आई थिंक आई लाइक जस्ट मैं एक बार जल्दी से देख लेता हूँ सारे कमेंट्स। वाई डोंट यू रिकमेंड इंडियन मूवीज़, ये कर दिया। सौरभ के ने भी बोले सजेस्ट अ बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग आर्ट एंड क्राफ्ट, थैंक्स फॉर द इंटरव्यू, अभी मुंबई मत घूमना। हाँ यार, नहीं घूम रहा। डू एन एपिसोड ऑफ अनुराग कश्यप। अरे एपिसोड क्या कर रहे हैं हम, अनुराग कश्यप को शो पे लाएंगे, थोड़ा बड़ा सोचो गाइस, अनुराग कश्यप को हम जल्दी शो पे लाएंगे। एंड दैट्स प्रिटी मच इट गाइस, आई विल टेक अ लीव नाउ, इट वाज फन, एंड talk about South movies which make amazing suspense movies. Yes, I'll get a lot of people. तो मैंने इतनी नहीं देखी इसलिए मैं नहीं करता, जिस चीज़ की मेरे को नॉलेज कम होती है मैं जान के बात नहीं करता, जिससे कि जो जिनको मेरे से ज़्यादा पता है वो बात कर पाए। एंड अगर आप लोगों को मूवीज़ की नॉलेज अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम टिकटॉक पे, हमारे यहाँ 3 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं, तो आप लोग टिकटॉक पे हमारे साथ टच में आइए। लाइक मैं आप लोग अपने मेरे को वीडियोज़ बना के भेजिए, दिस इज़ लाइक माई ID, आप मेरे को भेज सकते हैं। देखो, वैभव मुंजाल 25@gmail.com, आप मेरे को इस ईमेल ID पे अपना स्टफ भेज सकते हैं। एंड आप एक रिकमेंडेशन वीडियो बनाइए कि हाँ, जिसमें आप एक 30 सेकंड का कोई वीडियो रिकमेंड कर रहे हैं, एंड मे बी वी कैन कोलैबोरेट। सारे कोलैबोरेटर्स ढूंढ रहा हूँ, एंड वी हैव 3 लाख फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक, सो एंड वी रिकमेंड द सेम काइंड ऑफ फिल्म्स। वहाँ पे अगर आप साउथ इंडियन मूवीज़ करना चाहते हैं, कुछ और डिफरेंट करना चाहते हैं तो कीजिए, एंड आप मेरे को यहाँ पे ये इस ईमेल ID पे भेजिए। एंड रियल वीडियोस होते थे वैसे वीडियो एंड करते। आई विल लीव नाउ, बाय, ठीक है, एंड नाउ आई विल एंड द